So sir, today आज हम startups के बारे में बात करेंगे. Everything and all about startups. But I know ये idea बहुत अच्छा है. What should be my series of steps? कि अब अगर एक बार आपके दिमाग में idea है, आपको क्या-क्या करना चाहिए to reach to let's say the funding stage or reach to let's say the profitability stage. Welcome to the Corner Office, your go-to podcast where you learn about business, leadership and success strategies. I'm Sanchit Vijay from Corporate Professionals, and today we'll talk about accelerating startups from idea to impact. Do you know where the buzz surrounding the startup word came from? Are you an aspiring entrepreneur who's looking to start their startup? Do you want to understand how do we do the valuation or a pitch deck for a startup? Look no further. In this episode, we will be talking about the current landscape and the future plans of the startup ecosystem. Today we have with us Mr. Manoj Kumar, partner and head at the investment banking division at Corporate Professionals. Hello sir, welcome to the Corner Office. Thank you very much. It's pleasure to talk to you on this Corner Office today. So sir, today आज हम startups के बारे में बात करेंगे. Everything and all about startups. Great. So before I actually go deeper, I want to know what is this hype around startups. I mean, पिछले 7, 8, 10 साल में this startup as a word has come up so fast, and almost everybody and anybody is thinking of an idea and just putting down the company and calling it a startup. What is it? So, Sanchit, we know that the entrepreneurship starts with some idea, right? And each idea needs some scaling. If it has a business model, it can grow and it can earn profit, then it becomes a business. So, the idea of a startup started with the concept of doing some disruptive ideas, making it a business which can go a longer duration, sustain and give a new dimension to fulfill the unstated needs of people. So this started, I think the movement of startup started in India in 2013 around, where a few of them like Flipkart and came into India. Paytm and some Swiggy, Zomato. Yes. So Swiggy, Zomato came a bit later. So these are the ideas which had the potential to grow much faster. Okay. People thought about the need of these things. जैसे promoter को लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सामान चाहिए होता है, और there are people who are selling those goods, but उनके लिए चैनल नहीं है. बहुत तेजी से सामान, मल्टीपल लोग हैं, कोई अच्छे डिस्काउंट पे भी दे रहे हैं, बट वो राइट पीपल तक राइट प्राइस पे नहीं पहुंच पाता है. तो आइडिया ऑफ फ्लिपकार्ट केम. इट इज ऑब्वियसली बोरोड फ्रॉम द वेस्ट. वहाँ वॉलमार्ट और अमेजोन वाज ऑलरेडी देयर. बुक्स से स्टार्ट हुआ आइडिया. बुक्स की नीड थी लोगों को, तो आइडिया वहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड दिस आइडिया ग्रोन स्लोली. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज स्टार्टअप्स ग्रोन वेरी फास्ट इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, लोगों के पास डिफरेंट आइडियाज़ थे, और स्लोली उन्होंने उसको अडेप्ट किया. देन केम द फेज कि उसमें फंडिंग आने लगी. वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए जो हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड के लिए काम करते थे. जैसे फंडिंग आई वैसे और तेज ग्रोथ होने लगी. एंड द न्यू पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ लेट्स से IITs, IIMs, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाई नॉट create such kind of businesses which can scale very fast and which can grow to give solutions to certain unstated needs of the people. एक के बाद एक नए नए आइडियाज आते रहे. आई थिंक वी कैन से एज पर द गवर्नमेंट डेटा नाउ देयर आर 1,27,000 over 1,27,000 startups which are registered with the SEBI, government of India. But there may be many other startups which are not in corporate form right now, and they will come into the picture very soon. Yeah. So आपने जैसे mention किया कि VCs आने लगे, they are high risk taking people, वो funding करते हैं, बाहर से पैसा आने लग गया. So अभी current status क्या है of this funding and the trends within these startups in India? So if we talk about the startup ecosystem and the funding status of Indian startup ecosystem, बहुत तेजी से ग्रो किया 2013 से लेकर 2018-19 तक. But then there was a dip. Again, just post COVID scenario, it grown very fast. I think in 2021, around $38 billion came into various startups, which was a record for even, I think, world over.
सो वो ईयर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो, क्योंकि लोग डिजिटल पे इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहे थे. इंडियन पीपल वर ऑल्सो कंपेल्ड टू गो इनटू होम्स, बाय थिंग्स थ्रू ऐप एट्सेट्रा. और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी थी, जैसे डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र के थ्रू बैंक अकाउंट्स खुल गए, यूपीआई आ गई. तो इन चीज़ों ने इसको प्रमोट किया. और सो 2021 वाज अ बिग ईयर जहाँ पर सबसे ज़्यादा फंडिंग आई. द मोस्ट वन. Yes, then but again there is a slowdown. So over a period, the last year 2023 saw very significant dip. Winter funding Yes, was so fund. Yes, so right now it is a bit a hurdle to raise fund for startups. I think last year around $7 billion only came into various startups. क्योंकि बहुत सारे startups में failure के लक्षण दिखे. कुछ चीज़ें कुछ जगह जैसे बाइजू जैसी बड़ी कंपनियां फ्लॉप हो रही थी. पेटीएम के आईपीओ के बाद डिप आया, नाइका, पेटीएम एटसेट्रा का आईपीओ आया, उनकी प्राइस में डिप हुआ. तो वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़े से कॉशियस हो गए. एंड देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. द सिमिलर ग्रोथ केम इन वेस्टर्न कंट्रीज ईयर लेटर. सो 2022 वॉज बेटर फॉर अदर कंट्रीज दैन इंडिया. तो जब पैसा वहाँ यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा था तो इंडिया में फंडिंग कम हो गई. ये सिचुएशन है अभी, बट देर इज़ अ पॉजिटिविटी एंड वी बिलीव दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 years अगेन देर विल बी अ बूम फॉर इंडियन स्टार्टअप्स. सो करंटली आज की डेट में कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो VCs जिससे अट्रैक्ट होते हैं एंड फंड रेज करने के लिए दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स फॉर लेट्स से VCs, PEs और एंजल इन्वेस्टर्स, कि आज की डेट का एक बडिंग एज एंटरप्रेन्योर इन सेक्टर्स में अगर घुसता है तो फंड रेज करने की आई वुड रादर से probability or potential is way higher than any other sector? So if we focus on the raising of fund, then still the fintech sector is the best. Okay. The second one is coming out to be the AI based things, especially generative AI, machine learning, data mining kind of business. Then considering the size of the population of India, D2C remain always a big chunk of fundraiser for Indian startups. So D2C market will grow, e-commerce market will continue to grow. EdTech is the industry which is a very big need for Indian people because the population is very high. People are coming to this market every year. ये start होता है प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो भी सेक्टर रहेगा. दो देर आर चैलेंजेस लाइक बाइजू के कारण कुछ सेटबैक मिला है इस इंडस्ट्री को, बट इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर इजीली वी कैन गेट द फंडिंग. दो आई थिंक focus should be on a new kind of technologies in healthcare sector also. एजुकेशन में भी और फोकस की ज़रूरत है, एग्री टेक में भी फोकस की ज़रूरत है, और वहाँ भी बहुत स्कोप है इंडिया में. बट स्टिल ये जो पहले वाले 5-3-4 सेक्टर हैं जहाँ पर इजीली फंड मिल पा रहे हैं अभी. ओके, दैट्स राइट. सो सर, मैं एज अ फ्रॉम आवर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक आइडिया है एंड मुझे पता नहीं है अब क्या करना है, बट आई नो ये आइडिया बहुत अच्छा है. व्हाट शुड बी माय सीरीज ऑफ स्टेप कि अब अगर एक बार आपके दिमाग में आइडिया है, आपको क्या क्या करना चाहिए टू रीच टू लेट्स से द फंडिंग स्टेज और रीच टू लेट्स से द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज. ऑब्वियसली आज की डेट में तो जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग देयर ग्रोथ एंड रेवेन्यू साइड. प्रॉफिटेबिलिटी वो इतना नहीं देखते, और ऑब्वियसली क्योंकि VCs पुश करती है कि प्रॉफिटेबिलिटी ना देखो, आप रेवेन्यू पे फोकस करो. बट एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर लेट्स से मेरे पास एक आइडिया है, मेरे को आज क्या करना चाहिए? कंपनी फॉर्म करनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, उसके बाद क्या करना चाहिए? मतलब क्या कंप्लायंस, क्या क्या चीज़ें, मतलब स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर माय सीरीज टू बी डन फ्रॉम द रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, compliance standpoint, so that I can effectively start working on my idea as an entrepreneur. So संचित, अगर हम बात करें कि स्टार्टअप को कैसे स्टेप्स होंगे, तो द फर्स्ट स्टेप्स इज ऑब्वियसली द आइडिएशन. देन आइडिएशन नीड टू बी वैलिडेटेड. क्या है मार्केट साइज, क्या है पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, दोज थिंग्स नीड टू बी वैलिडेटेड. सो डिटेल वर्किंग नीड टू बी डन. देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस कि अभी क्या लैंडस्केप है. यू कैन टेक दिस एग्जांपल, इफ इन इंडिया देयर इज नो सच काइंड ऑफ बिजनेस, देन यू शुड वैलिडेट फ्रॉम द अदर मार्केट्स व्हिच इज ऑलरेडी डेवलप्ड, वेयर देयर मे बी सक्सेस और फेलियर्स. सो यू कैन लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ अदर्स. वो करने के बाद आपको देन प्रॉपर वर्किंग करने के बाद देन यू शुड
search for some mentor. Mentor means, let's say, some startup which is already successful, their people may be a mentor. Mentorship is very important, क्योंकि उन्होंने learn किया है कि कहाँ hurdles आती हैं, challenges आते हैं, वो उसको लेने के बाद then you come to the corporate structure और group structure. तब तक आप informal way में partnership या proprietorship business में के model पे चल सकते हैं. Then you should form a company. प्राइवेट कंपनी इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज पार्टनरशिप LLP स्ट्रक्चर में फंडिंग आना मुश्किल होता है. तो लेटर ऑन अब कन्वर्ट करेंगे, साइज अगर बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया, देन कन्वर्जन बिकम अ चैलेंज. सो think of private company, start with the private company, get it registered with government portal, also government startup initiative funds maybe उसमें register कराओ, and then take seed capital from friends and relatives to create the idea into a business model. And after that, try to not take the money immediately, because that time you will not get good money. हाँ, आपको कोई मेंटोर मिल रहा है या बिग नेम मिल रहा है, उससे आप फंडिंग ले सकते, उससे फंडिंग लेते हो, छोटी सी फंडिंग के बदले भी उनको शेयर देते हो, दैट इज अ गुड आइडिया. तो दैट विल बी सीरीज बी, ए, बी, सी. सिंपल कहें तो पहला स्टेज तो फाउंडर्स की इक्विटी है, देन सेकंड स्टेज इज द सम सीड कैपिटल विच इज कमिंग. देन गो टू द वेंचर कैपिटलिस्ट who will be able to guide you, also help in growth, because they have already got exposure from other startups. तो उसका benefit आपको मिलेगा, तो वो आप लो. एंड ईच स्टेज पर मेंटरशिप का हमेशा ख्याल रखो. मेंटर बदल सकते हैं, हो सकता है इन द इनिशियल स्टेज ए इज द गुड मेंटर, मे बी सम प्रोफेसर, समवन एटसेट्रा प्रोफेशनल, बट एट अ लेटर स्टेज यू शुड गो फॉर सम यूनिकॉर्न, एक्स यूनिकॉर्न पर्सन एटसेट्रा फॉर ग्रोथ. दैट विल बी द सीरीज. सर वैसे मेरा ना हमेशा से एक सवाल था, प्रॉब्लम मैं आज आपसे पूछ लेता हूँ, कि मैंने इतना बार देखा है स्टार्टअप्स में फंडिंग होती है, सीड राउंड, ब्रिज राउंड, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी. एक्चुअली इनके अंदर वेरी लेमैन्स टर्म के लिए, मतलब फॉर द ऑडियंस आप बता सकते हो फ़र्क क्या है? मतलब क्योंकि इतने सारे नाम हैं इनकी, बट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन फॉर हैविंग दीज डिफरेंट राउंड्स एज सच? So technically rounds of funding is based on the various series of funds coming into the company. तो पहला जैसे स्टार्ट है करते हैं तो दैट इज फाउंडर्स इक्विटी, जो कि हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप हो, उस समय कोई कंपनी नहीं हो. देन जब कंपनी फॉर्म होगी तो फर्स्ट जो पैसा आएगा वो अगर इक्विटी के फॉर्म में आता है या किसी ऐसे फॉर्म में आता है जो रिस्क लेने को तैयार है, दैट विल बी कॉल्ड सीड राउंड. तो वो जनरली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं वो पैसा डालते हैं. देन द फर्स्ट राउंड, फॉर्मल राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. आप एक लेवल के पहुंच जाते हो, आप अपना मॉडल बना लेते हो, आपकी पिच डेक रेडी है, देन यू गो टू वेंचर कैपिटल्स या छोटे छोटे जो इंक्यूबेटर्स के लेवल पे जो फंडर्स होते हैं वो उनके पास जाते हैं, वो पैसा डालते हैं. वो कुछ अपनी डिफरेंट टर्म्स रखते हैं, तो इसलिए वो सेपरेट काइंड ऑफ सीरीज रखते हैं. सो ईच सीरीज को अलग अलग नाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनकी टर्म्स डिफरेंट होती है, उनकी कन्वर्जन राइट्स डिफरेंट होते हैं. वो इट मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी बट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, तो वो उनकी राइट ऑफ कन्वर्जन डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट सीरीज लगा. एज पर दीज इन्वेस्टर्स उन्होंने टर्म्स कॉइन किए हुए हैं सो दैट इट इज ईज एंड स्टैंडर्डाइज अक्रॉस. यस, बट सीरीज कई बार जंप भी हो जाती है. लेट्स से जनरली जैसे हमने देखा है कि वेंचर कैपिटल्स, अगर आप जर्नी में चलें स्टार्टअप की, तो आपको सीड फंडिंग होनी चाहिए, देन वेंचर फंडिंग होनी चाहिए, देन प्राइवेट इक्विटी होनी चाहिए, एंड लेटर ऑन आप यू गो टू IPO. बट आप बीच में हो सकता है सीड के बाद सीधा SME IPO के मोड पे चले जाते हैं. ऐसा भी हो सकता है. आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप किसी के साथ मर्ज या कोलैबोरेट भी हो जाते हो, तो उस केस में फिर देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेकंड राउंड. सो वो जर्नी में कई बार स्विच होते रहता है. And then in between also there may be a round of ESOPs, sweat equities to be given to persons. तो वो एक different series साथ में चलती रहती है. तो सर आपने जैसे बताया कि किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को अगर कुछ कंपनी कोई स्टार्टअप है जिस पे स्टार्ट करना है, तो ही शुड फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. येस, इन द इनिशियल ही कैन स्टार्ट विद अ LLP और अ पार्टनरशिप, बट फंड रेज करने तो इवेंचुअली यू हैव टू कन्वर्ट. यस, लेट्स से मैंने आज प्राइवेट कंपनी बना लिया. अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या चीज़ होगा कि मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी भी आना शुरू हो गई, एंड द बिजनेस इज डिसरप्टिव. इट्स अ स्टार्टअप बट इट्स डिसरप्टिव. अब मुझे फंड रेज करना है, हाउ वुड आई डू इट? मेरे पास आई हैव मेंटर्स बट मेरे पास कोई तरीका नहीं. मतलब आई वुड रादर से कि जैसे आई वुड 70% जैसे इंडियंस के पास दे डोंट हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एट हैंड. सब कुछ टीयर वन सिटी से नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी से है, बट आइडिया डिसरप्टिव है. कंपनी भी बना ली, बिजनेस भी शुरू कर दिया, अब मुझे फंड रेज करना है फ्रॉम ईदर अ VC, PE और
HNI और whosoever, मुझे मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? क्योंकि सब कोई कहता है वैल्यूएशन करा लो, कोई कहता है फाइनेंशियल मॉडल करा लो, कोई कहता है पिच डेक बनवा लो, सो बट करना क्या चाहिए और वो राइट अप्रोच क्या है, एंड मेरे को हु वुड बी द राइट पर्सन टू डू इट? सो ये बहुत ही टिकलिस सवाल है. यस, इन मेट्रो सिटीज लाइक टीयर 1 सिटीज देयर आर कंसल्टेंट, देयर आर पीपल हु कैन गाइड यू इन ऑल सच सिचुएशंस. बट यस, फॉर टीयर 2 से बिलो जाके सिटीज़ में अगर देखें वहाँ आइडियाज़ तो हैं, पर उस आइडिया को वैलिडेट करना, उन्हें फॉर्मल नंबर्स में शेप देना, पिच डेक बनाना, ये एक चैलेंज है. सो देर आर सपोर्ट ऑनलाइन, देर आर पीपल हु गिव ऑनलाइन सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग द पिच डेक, क्रिएटिंग द financial model, etc. also, and there are people who are sitting in various places, वो इनमें हेल्प करते हैं. तो देर आर लाइक वी से इंक्यूबेटर सेंटर, उनसे अटैच लोग हैं, लीगल सपोर्ट के लिए भी हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी हैं, जो फाइनेंशियल नंबर बनाने में भी सपोर्ट करते हैं. देन देर आर पीपल हु आर गिविंग वर्चुअल CFO सर्विसेज, तो आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, वो आपके नंबर में हेल्प करेंगे. देन मैन पावर अगर बहुत ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, सो यू हैव पीपल हु कैन हैंड होल्ड इन मैन पावर प्लानिंग एंड HR मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो आपको उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी. देन बिकॉज यू नीड टू गो आउट, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और उन चीज़ों के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो देर आर पीपल हु कैन फंड यू इन द फॉर्म ऑफ सर्विस. सो यू शुड टेक दो सर्विसेज अगर आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है. बट अगर आपके पास, इफ यू कैन रेज फंड, then you can take the services of these people. Obviously, taking equity is always costly, because even if you are giving 1% in a year or so, it may become 10 crore value. Otherwise, the service value may be 20-25 lakh rupees only. So ये difference है. तो हमें I think open रहना पड़ेगा. शुरू में अगर हमें लगता है कि इसमें growth की opportunity है, तो then we should not hesitate to share equity if it is mandatory. अदरवाइज आइडिया किल हो जाएगा, आइडिया कोई दूसरा ले जाएगा, देन दैट इज गॉन केस फॉर यू. तो एज अ एंटरप्रेन्योर, मुझे अपनी जो ये पिच डेक और वैल्यूएशन, अगर लेट्स से पिच डेक जो बनानी है, पिच डेक किसके बेसिस पे फंड रेज करूँगा, कौन से पॉइंटर्स मुझे मेंशन करने होते हैं अपनी पिच डेक में, इंश्योर करना होता है कि ये चीज़ तो ज़रूर मेरी पिच डेक में आई ही आए? सो आई थिंक संचित, तुमने देखा होगा कि गूगल पे अगर आप सर्च करो तो देर आर वेरियस ट्यूटोरियल्स, गाइड्स मिलते हैं. जैसे Airbnb की पिच डेक बहुत फेमस है, राइट? तो सैम टैम सोम इज द कंसेप्ट. आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, उसमें से आप किसको टारगेट कर रहे हैं, और उस टारगेट करने के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, ये आपको बताना है. तो आइडिया को पहले आप बहुत अच्छे से इलेबोरेट करें, बताएं कि क्या आइडिया है, वो दैट शुड बी योर पिच, कि आप क्या कहना चाहते हैं, एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो दैट इज द थिंग. देन यू हैव टू शो हाउ स्केलेबल दिस आइडिया इज. तो स्केलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप में यही डिफरेंस है कि वहाँ स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. रिस्क भी ज़्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, ये हमें पता है. देन हमें कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस जरूर करनी चाहिए अगर हैं तो. अगर आप बिल्कुल नए तरह का बिजनेस मॉडल लेके आए, देन इट्स फाइन, बट अदरवाइज यू शुड कंपेयर विद अदर्स एंड डिफरेंशिएट योरसेल्फ, गिव योर USPs, आपकी यूनिक सेलिंग थिंग्स क्या है, आप क्यों डिफरेंट हैं फ्रॉम से अदर्स. तो ये आपको देना है, एंड देन अपनी स्ट्रेंथ बताएं. आपके पिच डेक में आपका पैशन दिखना चाहिए. वेंचर कैपिटलिस्ट तभी इन्वेस्ट करते हैं जब प्रमोटर का 100% वहां लगा. आई थिंक कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट आइडिया पे नहीं, प्रमोटर पे इन्वेस्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर पे. एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो दे चेक that there is a scalability, there is a possibility of it converting into a business, profitable business, not now but in over a period of time. And then they want to see that the promoter is 100% into it. His skin is in the game. He should not be focusing on other things. उसके पास 2 फैमिली बिजनेस भी चल रहा है और ये साथ में कर रहे हैं. ऐसी चीज़ों पर कोई प्रमोटर फोकस नहीं करना चाहिए. स्किन इन द गेम होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए. एंड डे इन डे नाइट आप उसी को सोच रहे होते हैं. देन इट इज़ द गुड वेंचर फॉर एनी वेंचर कैपिटलिस्ट. फेलियर भी होगा तो भी वो रिस्क लेने को तैयार होगा, अगर उसे कॉन्फिडेंस होगा कि फेलियर का फर्स्ट स्टेप आप लोगे, उसका बर्न आप करोगे, आप लेने को तैयार हो, आपका जी जान वहीं लगा है. दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर. ओके सर, इसके अंदर अब ये वैल्यूएशन कैसे होती है? मतलब किसी भी स्टार्टअप की, आई मीन बिजनेस शुरू नहीं हुआ, सिर्फ आइडिया है, सोचा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगी मार्केट, इन इतने अर्ली एजेस स्टार्टअप की हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? क्योंकि वैल्यूएशन तो बहुत सब्जेक्टिव होगी. yes. क्योंकि आजकल हम सब शार्क टैंक पे देखते हैं कि
कुछ स्टार्टअप्स आते हैं, दे आस्क फॉर सम वैल्यूएशन, फिर नेगोशिएशन होता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू एक्चुअली वैल्यू. सो फॉर आवर ऑडियंस, अगर आज मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, इट्स आई वुड रादर से वैलिडेटेड है, थोड़ा बहुत बिजनेस आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, बट मैं वैल्यू कैसे करूँ अपने स्टार्टअप को? सो सचित, दो ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेथड्स तो वही हैं जो सभी कंपनियों के लिए लगते हैं, जैसे डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड, दैट इज द वेरी सिंपल मेथड. आपको प्रोजेक्ट करना होता है तो स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत फास्ट ग्रोथ दिख रही होगी. जनरल बिजनेस 20% 15% ग्रो करता है, हम इसे बहुत फास्ट मानते हैं, बट फॉर स्टार्टअप्स इट इज 100%, 500%, 1000% इन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स. सो आप उस बेसिस पर अपने प्रोजेक्ट करें, और प्रोजेक्शन के साथ साथ आप उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए. सो इफ यू आर सेइंग कि इट विल ग्रो बाई 1000%, देन देयर शुड बी मार्केट टू ग्रो दैट वे. यू शुड हैव द रिसोर्सेज. क्या आप बोलोगे इतने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, क्या आप उसकी कॉस्ट को फैक्टर कर रहे हैं? इस लेवल की अगर आपने थ्रेडबेयर प्लानिंग की है, फाइनेंशियल प्लानिंग की है, देन इट कैन बी अ मेथड. देन दूसरा होता है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस. सो यू इफ देयर आर अदर स्टार्टअप्स इन दिस डोमेन और अदर बिजनेसेस इन दिस डोमेन, सो दैट विल बी वन ऑफ द बेंचमार्क. उसके ऊपर से टेस्टिंग एंड चेंजेस होंगे. वो चेंजेस क्या होंगे? जैसे स्कोर कार्ड मेथड है, सो दैट इज फॉर स्टार्टअप्स. स्कोर कार्ड मेथड बेसिकली सेज दैट यू हैव टू सी व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट द वैल्यूएशन, एंड यू विल गिव द each of them certain value weight, and that weight will be determine the general DCF value. You will adjust it for that. So let's say scalability is given 10% weight, promoters contribution, promoters in effort is given certain weight, team strength given weight, technology is given certain weight, risk is also given a negative weight, and you just add on, and then let's say number is coming to be 7. So DCF value is coming to be 100 crore, and you have got 70 as the value. So 70% of the 100 is the value. That way we will adjust, and that will be one of the method. Then there are first Chicago methods, which obviously see the best case scenario and the worst case scenario, and then the base case scenario. So you will adjust the valuation, which is determined on the basis of the scenario. Yes, scenarios. So that will be one of the method. Then there are Burkus method, which also goes. Then there is a venture capital method. So venture capitalists generally see what return they will get over a period of time. So they want exit value first. So let's say they are putting 100 crore. So after 3 years they would like to exit at 500 crore. So if, or reverse, we say if they can get exit of 20% share after 3 years at 500 crore. So what is the present value of that? And then they adjust for the risks. So that will be the value they can put for 20% stake. So these are the methods, and there are well-established principles on the basis of which we can value. So I think so for users, for our audience, Burkus method आपने बताया, आपने first Chicago बताया, आपने score का methodology बताया, then traditional approaches में in discounted cash flow हो गया, या company comparable methodology हो गया. So these are the methods that any person should study about before getting the valuation done from a, let's say, a registered valuer or a merchant banker or any person which the venture capitalist or the private equity would want them to get their valuation from. Right. Sir, I think we are getting to the last segment. मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा. I think India में बहुत सारे startups आए हैं in these past 10 years. I want to know which are your favorite disruptive startups. मतलब कि आपको लगा कि actually में इन्होंने इंडिया की फेस को बदला है. So what are those startups that you think are there, and how did they reach to that stage? So अगर हम बात करें स्टार्टअप्स विच आर वेरी यूनिक, तो दो आई थिंक सो फर्स्ट वन कम टू माई माइंड इज फ्लिपकार्ट. इंडियन बेस में अगर बात करें तो उसने बहुत चेंज लाया. इतना आसान नहीं था शॉपिंग करना. यस, अमेजोन वॉज कमिंग, बट अमेजोन से भी फास्ट फ्लिपकार्ट ने बहुत जल्दी आया, और बहुत पहले इंडिया में लोगों ने इसको समझा. साथ में ही 2-3 और भी थे, लाइक स्नैपडील, जो कि शायद सक्सेसफुल नहीं रहा, बट इसने अपने को ग्रो किया. नाउ राइट नाउ इट इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो वो अलग है. बट दैट वाज देन पेटीएम वाज, आज हम भले इसको कह सकते हैं कि इट इज इन अ प्रॉब्लम, बट इट वाज अ वेरी बिग गुड आइडिया, गेम चेंजर आइडिया. पूरे फिनटेक इंडस्ट्री को चेंज करने वाला फिनटेक स्टार्टअप. मतलब मैं तो आज भी समझता हूँ कि जब भी मेरे को किसी को यूपीआई बोलना होता है ना, तो आई डोंट पेटीएम ही निकलता है मुझसे, पेटीएम ही निकलता है, पेटीएम कर देता हूँ मैं. अभी भी चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, ये सारे ऑप्शंस हो, बट पेटीएम इज द पेटीएम. जैसे वो जेरोक्स का सिनोनिमस, अभी भी जेरोक्स, फोटोकॉपी का मतलब जेरोक्स होता है, वैसे ही है. तो वो आइडिया
अभी भी बहुत अच्छा है। देन एडुटेक में बाइजू का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। पहली बार सबके मोबाइल पे अब आज के डेट में वेदांतु हो या दूसरे भी बहुत सारे आ गए हैं और रोज रोज नए आइडियाज आ रहे हैं, पर बाइजू का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग हैं। अब आप क्रिप्टो में देखोगे स्टार्टअप से, बट दोज आर नॉट द फर्स्ट आइडिया in India. Game changer idea. They were ideas which did shape the Yes, country, yes. but they were not game changer. तो ठीक है। मुझे वैसे मेरा इस सिनेरियो में आई थिंक वेरी रिसेंट टाइम में मेरे को ऐसा लगता है Blinkit is something which has really yes that I missed it. Yes, Blinkit is a very big idea. Blinkit हो, then उसके साथ अब Zepto उनके नकल में बहुत सारे आ गए हैं। बहुत सारे और भी आइडियाज हैं, लाइक फूड का आइडिया जो जिससे फूड पांडा से शुरू हुआ, या जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी। तो चाहे फूड पांडा फेल हो गया हो, बट इट वाज द गेम चेंजर। खाना इतना आसान नहीं था, रात के 10 बजे 2 बजे रात को भी आपको फूड भूख लगे और खाना मिल जाए, दैट वाज अ बिग थॉट। ये चीज़ तो मुझे सच में फील होती है कि हम लोग इंडिया को डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, लेकिन व्हेनेवर आई ट्रैवल आउटसाइड मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। कहीं ना कहीं इंडिया में इतनी कन्वीनियंस है to everything and anything that you can't even imagine. मतलब अगर आप बाहर जाते हो आपको सारे काम खुद करने, बहुत आपको डिलीवरी कुछ नहीं आती, डिलीवरी की कॉस्ट बहुत हाई है। इंडिया में बहुत ही लो है फ्रॉम दैट स्टैंडपॉइंट। इसमें आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे यूपीआई को प्रमोट करने वाले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसकी वो टेक्नोलॉजी एनसीसीपीआई की टेक्नोलॉजी है, उसने डिसरप्टिव काम किया एंड इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन वेस्ट आल्सो। तो बहुत सारे श्रीलंका में आ गई, फ्रांस में आई थी। यस, तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर ग्रो कर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है तो बहुत बड़ा फायदा होता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया है लास्ट 10 ईयर्स में, सो वो दैट इज सो इकोनॉमिक ओवरऑल इकोसिस्टम इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। आपको अभी लगता है कोई अभी करंट स्टेज ऑफ स्टार्टअप में जो विच कैन बिकम एक्चुअली वेरी ह्यूज, जो आपको लगे कि कोई ये स्टार्टअप हो या कोई आपका आइडिया जो आपको लगता है कि दैट इस आइडिया पे कोई अगर काम करे तो इट वुड बी रियली नाइस? आई थिंक शायद हम जो भी सोचेंगे कोई ना कोई इस पर आइडिया पे काम कर रहा होगा। किस लेवल पे कर रहा होगा ये पता नहीं, बट जैसे इंडियन सिनेरियो में हमें ये देखना जरूरी है कि एग्रीटेक एंड हेल्थ केयर जो 2 सेक्टर हैं वो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा ही। हेल्थ केयर सेक्टर में आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर्स की लिस्ट, नंबर ऑफ डॉक्टर पर 1000 ऑफ पीपल इज वेरी लो इन इंडिया। तो इन चीजों के लिए शायद और बेटर सर्विसेज की जरूरत है, स्टार्टअप की जरूरत है। जो देयर इज अ बिग गैप आई थिंक। सेम वे इन एग्रीटेक, एग्री नॉलेज को जगह तक पहुंचाना, दो देयर आर वेरियस बिग कंपनीज आल्सो प्रोवाइडिंग ईच ऑफ ऑल समथिंग लाइक दैट, और सर्विसेज को उनकी मंडी तक लाने की सर्विस, बट देयर इज स्टिल वेरी एग्रीगेरियन प्रॉब्लम इन द रूरल एरियाज और छोटे जगहों में। तो उसको मेन बोर्ड तक लाना, देयर इज अ गैप इन द प्राइस, उनको पैसा सही नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों के लिए शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, एंड स्टार्टअप का बहुत गैप है। उसमें भी बहुत सारा है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन चीज़ों के लिए शायद ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोज आर ग्रोइंग, बट वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। सो इसको पुश की ज़रूरत है, एंड आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, देयर विल बी बिग बूम इन कमिंग ईयर्स। और सर कोई वेस्ट का आइडिया जो आपको लगता हो? जैसे मेरा फेवरेट तो मैं बताऊंगा, मेरे को बहुत सही लगता है एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट। आई मीन दे हैव रियली चेंज्ड द गेम ऑफ होटल इंडस्ट्री और इवन अकोमोडेशन। नहीं, वो तो जैसे हर आइडिया बहुत अच्छा है जो ग्रो कर गया। जैसे उबर, ओला का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और उसने बहुत अच्छा किया। अभी नए जनरेशन में जाके वो कार डिलीवरी या बाइक डिलीवरी वो डोर स्टेप पे कर रहा है, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग टू हैपन। तो ये आइडियाज तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ओला ओयो रूम्स के कॉन्सेप्ट को भी पहली बार लाया। आई थिंक छोटी छोटी जगहों पर आपको ओयो रूम मिल जाते हैं, दैट इज गिविंग रीजनेबली गुड सर्विस। पहले तो हमारे लिए डॉर्मेट्रीज, अगर हम वैष्णो देवी जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था। डॉर्मेट्री में रखो, फैसिलिटीज नहीं थी, क्लीनलीनेस नहीं थी। अब एटलीस्ट छोटी जगहों पर भी आपको ओयो रूम में सिंपल लिविंग के लायक चीजें मिल जाती हैं और बहुत ही रीजनेबल वे में मिल जाती हैं। सर क्या ये कुछ हद तक ये रीजन हो सकता है इंडिया का इतनी फास्ट ग्रो करने का एज ए इकोनॉमी? आई थिंक $5 ट्रिलियन भी हो गए हैं। 5 ट्रिलियन होने वाले हैं, अभी तो 3 ट्रिलियन क्रॉस किया है। यस, 2 साल में हो जाएंगे $5 ट्रिलियन। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि आप जैसे जो गवर्नमेंट डेटा है लास्ट 10 ईयर्स में $180 बिलियन इंडिया में आया स्टार्टअप में, बट उसके साथ जो हमारे यूनिकॉर्न्स हैं उन्होंने उनके चारों ओर जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग ह्यूज मार्केट। बहुत सारे की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। एक काम नहीं है, जैसे लेट्स से हम बोल रहे हैं ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट इज वन आइडिया,
बट देन देयर इज अ पर्सन हु इज डिलीवरिंग, लाइक फ्लिपकार्ट, तो ई कार्ट या और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक सिस्टम्स, तो ये लॉजिस्टिक्स के आइडियाज भी उसके साथ ही लिंक्ड हैं, उसके बिना ये नहीं हो सकता था। तो एक एक करके सर्विसेज, देन इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, डिलीवरी बॉयज़ को, जो गिग वर्कर्स का पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया में आ रहा है वो ड्यू टू ऑल दीज स्टार्टअप्स आ रहा है। सारे लोग ऑन रोल नहीं होते हैं, लेकिन चेन में काम होता है। बहुत छोटी छोटी जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी जो शायद डिलीवरी नहीं कर पाते थे, पेटीएम और अपने D2C के कारण डायरेक्ट डिलीवरी कर पा रहे हैं, राइट प्राइस ले पा रहे हैं। सो दीज आर अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज साइज ऑफ मार्केट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। थोड़ा सा अभी कहने के लिए फंडिंग विंटर चल रहा है, बट दिस विल गो। आई थिंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही रही है, और आज का ही न्यूज़ मैंने देखा कि अराउंड 8% GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो फाइनल नंबर आ रहे हैं। सो दैट वुड हेल्प टू ग्रो extremely good. Great, sir. Thank you so much for coming to the corner office, and it was a really interesting conversation. Great. And we'll watch out, and we'll hope that we have the second episode very soon. Sure. I'll be always happy to discuss about this startup and other things. Thank you very much. So this concludes our episode on the startup series, and we have a lot more in store for you. Thank you for joining us. Stay tuned to our space for insights into the corporate world. Like, share, and subscribe, and let us know in the comment section on what you'd want to know more about. Hit the bell icon. Thank you.